this is an air cooler. Air cooler is basically used for giving cool air in summers. We use it in our daily lives. It uses many principles like force. Then it also sucks air. Uh, so so this is the vent of the air cooler, like this. Then it has a fan over here, and then it has a base which has honeycomb pad. And there's a pump that there's a pump there's a container in which there is a pump that has a pipe, and it sucks the water, and it leaves the water, so it gets all over the water gets all over the honeycomb pad, which makes it moist. And when the use of this honeycomb pad is when the air is sucked through the fan. It gives a little cooler air, because when there is heat, that is the honeycomb pad sucks the heat over here, and then the water droplets here gets evaporated and makes the air cooler. It the air is divided through the vents like this, so it's a multi-directional air cooler. It also has connections of it also has the basic connections of the fan, like there's a switch and a battery. So, any questions? यार it's not complete सा नहीं लग रहा है, because जैसे you said vent air and you said it sucks the air, so probably you would want to say कि why does it suck air. Second thing is, why does air get much cooler than usual? ठंडी कैसे हो जाती है हवा, क्या रीज़न है? हनीकॉम पैड क्यों है, उसका क्या रीज़न है? I told you that. Okay. तो यू सेड हनीकॉम पैड के ऊपर पानी स्प्रेड हो जाता है, वो रीज़न थोड़ी ना है. And then it makes the honeycomb pad moist, and the heat that is in the surrounding is getting absorbed by the honeycomb pad. अगर सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब हो रही है हनीकॉम पैड में, So that heat allows the water to evaporate. if water is getting evaporated, तो हवा ठंडी कैसे होगी? अगर आपके ऊपर मैं स्टीम थ्रो करता हूँ, स्टीम विच इज हीटेड फॉर्म ऑफ वाटर, राइट, तो आपको ठंडा लगेगा. और डज स्टीम, भाप जिसे बोलते हैं, वो गर्म लगती है कि ठंडी लगती है? जस्ट आस्किंग, टेल मी. गर्म लगती है. आप जो लॉजिक दे रहे हो उसके हिसाब से तो यू आर एडिंग वार्म वेपर टू द एयर, so it shouldn't be a air cooler, it should be a air warmer. लॉजिक कहीं पे मिसप्लेस्ड है भैया, है ना? सोचो, बताओ मुझे. Maybe, see, you can only feel air to be cooler only when it loses temperature. It cannot gain temperature. It has to lose temperature, lose heat, lose energy to become colder. So somewhere in the process, something is helping air to lose the temperature. Gaseous, as I researched, it was shown it changes into the gaseous form that decreases the temperature
What changes into gaseous form? Water. The water. In the video I saw they said that. And in I watched 2-3 videos that was only mentioned that the water changes into a gaseous state that allows the temperature to decrease. अच्छा ऐसे सोचो इस चीज को, जो वाटर हनीकॉम्ब पैड पे स्प्रेड हुआ है, अगर वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है, वेपराइज फॉर्म में चेंज हो रहा है, वो कब हो सकता है? कोई भी लिक्विड गैसियस फॉर्म में कब चेंज होगा? देयर इज ओनली वन रीजन, Evaporation. वो तो प्रोसेस का नाम है। रीजन बताओ क्यों चेंज होगा? क्या करना होता है वाटर के साथ जिससे वो गैसियस फॉर्म में चेंज होता है? So to boil it to 100 degrees Celsius. It should take that much of heat. We should give it Should that consume. much enough heat so that it turns into another state. Yeah. That you know already. उस वाटर को वेपराइज होने के लिए वो हीट कहाँ से मिल रही है इस केस में? Surroundings. What are those surroundings? वो surroundings है क्या चीज? तुम जब ये surroundings ऐसे ऐसे बात करते, एयर, स्पेस थोड़ी ना है सराउंडिंग, यहाँ पे एयर सराउंडिंग है ना? ऐसे सोचो अगर ये सब कुछ वैक्यूम में होता, Alright, the air is coming here, so it gets cooler in the honeycomb pad and then it is sucked by the yes, fan. और कूलर कैसे हो रही है? बिकॉज इट्स हीट इज बीइंग टेकन बाय द वाटर Water एंड वेपराइज्ड, गॉन। vaporized into gaseous state and that is sucked by इट्स the लाइक एक चीज ने एयर से उसकी हीट ले ली, उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ले ली। अब दोज मॉलिक्यूल्स व्हेन दे विल कम टू यू विल बी कोल्डर देन द यूजुअल। So the warmer air in the surroundings are getting sucked by the honeycomb pad. Then सब तो फैंसी हो रहे हैं बट गोइंग थ्रू द हनीकॉम्ब yes, they are going through the honeycomb pad and the cooler water moist is taking over the heat and the cooler and it gets vaporized into cooler gaseous state. No, not cooler gaseous state. That's what I'm saying. That's what I'm saying, buddy. Think about it in this way In again. the cooler air, sorry. So the air heat is passing through. So Heat is getting transferred from air to the water. okay. The water which is spread over the honeycomb. Yeah. So the बेटा अगर वाटर के कारण, अच्छा ऐसे सोचो अगर जो कूलर में पानी भरा है मैंने, मैं रियल एग्जांपल दे देता हूँ तुमको। जब अभी तो खैर एसीज वगैरह होते हैं, जब हमारा पहले कहीं और घर था, वहाँ पे नीचे घर था, तो कूलर भरते थे हम। पानी जो टंकी से आता था ऊपर से टैंक से, वो बहुत गर्म आता था क्योंकि जून जुलाई की गर्मी होती थी, पानी ही गर्म होता था, पानी ही बहुत गर्म होता था टंकी के अंदर, और वो गर्म पानी ही कूलर में भरना पड़ता था। गर्म पानी कूलर में भरना। कूलर से ठंडी हवा नहीं आती क्योंकि पानी ऑलरेडी इतना गर्म होता था। तुम समझ रही हो कि एयर उससे पास होके जब आती थी, कूलर के हनीकॉम्ब पैड पे पानी गिरा, गर्म पानी, जब कूलर की जब गर्म हवा आती बाहर से आती थी, कोई टेम्परेचर ट्रांसफर है ही नहीं, कोई हीट ट्रांसफर है ही नहीं, पानी होना चाहिए ठंडा, तब वो एब्जॉर्ब करेगा एयर की हीट को और एयर कम टेम्परेचर पे चली जाएगी और फिर तुम्हें ठंडक महसूस होगी। हाँ, तो जब कम हो रहा है टेम्परेचर, तो वो जो एयर अब इसके थ्रू पास किया, तो वाटर के थ्रू वो टेम्परेचर कम हो गया उस एयर का, देन दैट एयर इज गेटिंग सक्ड बाय द फैन एंड इट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वेंट्स। वो भी वही बता रहे थे उन वीडियोस में भी, तो दे वर टेलिंग यू द सेम थिंग, मगर तुमने ये सोच लिया कि वाटर इज कमिंग, वाटर वेपर इज कमिंग एक्चुअली, तो दिया वाटर वेपर भी आ रहा है, जो वहीं पर वेपराइज हो रही है, वेपराइज हो रहा है वाटर, वो भी आएगा, ऐसा नहीं है ना, वो भी तो सक होगा, वेपर एयर के साथ साथ मिक्स हुआ होगा कि नहीं होगा? बट द एयर्स टेम्परेचर जो नीचे गया है, दैट विल स्टिल हैव एन इफेक्ट ऑन यू कि हाँ ठंडा हो गया। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल्स तुमको देखने चाहिए, जो फैन के डिजाइन के कारण सक्शन हो रहा है, दैट वेपराइजेशन वाज द मेन थिंग रियली में, दैट्स इट। Change of state, vaporization, suction,
यूजिंग द फैन, हाउ इट इज बीइंग डन, जैसे वैक्यूम क्लीनर में होता है सेम ही है सक्शन का, फैन का जो डिजाइन है उसके हिसाब से, समझ रहे हो? ये सब फ्रेमवर्क में आपने किया है, लिखा है? फ्रेमवर्क में तो जो फर्स्ट फ्यू पार्ट ऑफ द पर्पस वगैरह वो सब किया, मैं फिर रिसर्च वो किया था। आई हैव वन क्वेश्चन हियर, ये जो वेंट बनाया है आपने, इसको घुमाओ मॉडल को थोड़ा चारों तरफ, हाँ, ये जो वेंट्स बनाए हैं चारों तरफ, अगर इसमें दो ही वेंट्स होते, ये चारों वेंट्स क्यों बनाए हैं फिलहाल आपने, शायद अलग अलग डायरेक्शन मल्टी में? डायरेक्शन करने के लिए, फोर साइड जैसे चारों तरफ। डू यू थिंक हवा का जो प्रेशर है चारों तरफ वो डिवाइड होके इट विल वो रिड्यूस? रिड्यूस हो रहा है अच्छा, बिकॉज बहुत सारा आगे अगर डिवाइड हो रहा है, so it will reduce. इट इज रिड्यूसिंग. If we have 10 and we divide it into 2, so it gets 5 only, so it's reducing over here. So per vent rated reduction हो Yeah. रहा है. Okay. But if there was only one vent, so it would be the same. क्वेश्चन है किसी के पास गाइस? आरिका, विद एनी क्वेश्चन? श्योर. ठीक है दिया, थैंक यू.